Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, as you know, we have discussed in our previous lecture about rational numbers. Today our topic is number line. What is a number line? In math, a number line can be defined as a straight line with numbers placed at equal intervals or segments along its length. A number can be extended infinitely in any direction and is usually represented horizontally. मैथ्स में नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है जिस पे नंबर्स को एक इक्वल बाकायदा वक्फ़ों के बाद एक जैसे वक्फ़ों के बाद शो किया जाता है और वो नंबर्स हम इन्फिनिटली अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में। और नॉर्मली यूजुअली इसको जो है वो हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ अ नंबर लाइन, स्टार्ट्स विद ज़ीरो। ज़ीरो से फॉरवर्ड जितने भी नंबर्स होते हैं दे आर द पॉजिटिव इंटीजर्स और ज़ीरो से बैकवर्ड जितने भी नंबर्स होते हैं दे आर द नेगेटिव इंटीजर्स। ज़ीरो इज़ नॉट अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। Students, now we will discuss how rational numbers can be represented on a number line. Dividing the segment between each pair of consecutive integers into two equal parts, we get the representation of the numbers -1/2, -3/2 up to so on, 1/2, 3/2 up to so on. Now we will draw a margin line. 0 is the center. Numbers increase to the right on the number line and they decrease to the left on the number line. यानी राइट साइड पे ज़ीरो से फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं, ज़्यादा होते हैं और ज़ीरो से बैकवर्ड डायरेक्शन में लेफ़्ट साइड पे की तरफ हमारे नंबर्स और इंटीजर्स डिक्रीज़ होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि नंबर लाइन को जब हमने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको उसके नंबर्स को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। सो लुक एट द डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर इज़ 2, सो वी विल डिवाइड द ईच सेक्शन और सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 0, 1/2, 2/2, 2/2 विल बिकम 1, देन 3/2, 4/2, 4/2 will become 2, 5/2, 6/2 up to so on. Similarly, with the negative integers 0, -1/2, -2/2, -2/2 will become -1, -3/2, -4/2, -4/2 will become -2, -5/2 and up to so on. So this is the representation of the rational numbers on a number line. Similarly, if we divide the segment between each pair of consecutive integers into 3 equal parts, we get the rational numbers -1/3, -2/3, -4/3, -5/3 up to so on, and 1/3, 2/3, 4/3, 5/3 up to so on. Here the denominator is 3. Now we will divide each segment into 3 equal parts. 0 is the center, then 1, 2, 3, 4. 0 और 1 के दरमियान जितने का जो एक सेगमेंट है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। So the rational number 1/3, 2/3, 3/3 will become 1, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3, 9/3 will become 3 up to so on. So this is the basic method to represent the rational numbers on a number line. All rational numbers can be placed on a number line. तमाम rational numbers को हम number line पे represent कर सकते हैं इस तरीके से। I hope आपको यहाँ तक clear हो गया होगा। मज़ीद हम एक्सरसाइज में भी नंबर लाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Now we will discuss some examples regarding rational numbers.
Write the fraction equivalent to the number -3 multiplied by 2 divided by 25 minus 18. Is it a rational number? Now, the numerator of that fraction is -3 multiplied by 2. That will become -6. 2 3s are 6. तो माइनस का साइन एज इट इज 7 आ जाएगा. And the denominator of that fraction is 25 minus 18. Divide. Here divide is the representation of ratio over of a fraction. 25 minus 18 is equals to 7. So the required rational number is -6 over 7. -6 is the numerator and 7 is the denominator. Another example is express -3 over 5 as a rational number with numerator 6 and denominator -15. Numerator, as you know, numerator is the upper part of the fraction and the denominator is the lower part of the fraction. -3 over 5, हमने -3 over 5 को इस तरह से सॉल्व करना है कि जब हमारा आंसर आए तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो 3 की बजाय 6 हो जाए. तो अब हम 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? ऑब्वियसली 3 2s are 6. तो हम -3 over 5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ये नहीं करना कि हमने सिर्फ न्यूमरेटर को 6 बनाना है तो हम सिर्फ 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें बट 5 को ना करें. जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एक फ्रैक्शन के साथ तो उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. अब -3 को -2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 3 2s are 6. अब -2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि न्यूमरेटर इज़ +6. जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है. और यहाँ पे -3 जो है वो नेगेटिव है. तो अब हमने नेगेटिव को पॉजिटिव भी बनाना है तो फिर हम -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड -2 को ही हम डिनोमिनेटर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 2s are 6 एंड 5 2s are 10. अब 10 जो है वो माइनस का है और 6 जो है हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर है. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 6 over 10. ठीक है. और ये जो माइनस है वो हम साथ लगाएंगे, लेकिन ये जो माइनस है ये डिनोमिनेटर के साथ माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड इन द सेकेंड केस द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज़ 5. अब हमने 5 को रिप्लेस करना है 15 के साथ. ठीक है. डिनोमिनेटर 15 हमने बनाना है तो 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आ जाए. अगेन यहाँ पे 5 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 15 नेगेटिव इंटीजर है. तो हम 5 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको नेगेटिव करने के लिए -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन वही बात कि हम जिस चीज़ को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. -3 मल्टीप्लाइड बाय -3, 5 मल्टीप्लाइड बाय -3. सो इट विल बिकम -9 over 15. Here is another example related to number line. Represent -2 over 5 on the number line. Here the denominator is 5. Then divide each segment into 5 equal parts. Each part represent 1 over 5. -2 over 5 है. It means कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं उस साइड पर ये नंबर रिप्लेस होगा. Here 0 एंड -1 के दरमियान जितना भी इस सेक्शन को 0 और -1 के सेक्शन को हमने इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 over 5. सो हैव अ लुक. -1 over 5, -2 over 5, -3 over 5, -4 over 5 and -5 over 5 will become -1. Here this number is, this point shows -2 over 5. So this is our answer. Friends, now we will discuss exercise 2a. The question number 1 is, which of the following are rational numbers? Rational numbers means the numbers which can be
रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। वो तमाम नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो उनको रैशनल नंबर कहा जाता है। सो 3, कल हमने पढ़ा था कि 3 होल नंबर्स जो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता और ऑल्सो रैशनल नंबर्स, हम उनके डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करते हैं। सो 3 इज़ अ रैशनल नंबर। सेकेंड वन इज़ 3/1, ये p/q की फॉर्म में है, सो इट्स अ रैशनल नंबर। द थर्ड वन इज़ 3/0। As you know, the fraction with denominator 0, the result is undefined. किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो आ जाता है तो उसका आंसर डिफाइन नहीं किया जा सकता, सो इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। -3/1 इज़ अ रैशनल नंबर। -0/3 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में ज़ीरो हो तो उसका आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। -3/-1 अगेन in fractional form, so it is a rational number. 0/0 again it's not a rational number because it has a denominator 0. The question number 2 is write down the following rational numbers as integers. The first one is 7/1. 7/1 is a rational number. इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें रैशनल नंबर को जब हमने इंटीजर्स में लिखना होता है तो हम उसको विदाउट डिनोमिनेटर लिख देते हैं। सो हम हेयर 1 इज़ अ डिनोमिनेटर, तो हम इसको डिनोमिनेटर हटा के लिखेंगे, इट विल बिकम ओनली 7। सो 7 इज़ अ इंटीजर। यानी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हमने रैशनल नंबर को इंटीजर में चेंज करना है तो हम उसको विदाउट डिनोमिनेटर लिखते हैं। -5/1 इज इक्वल्स टू -5, डिनोमिनेटर को रिमूव कर दें। -9/1 इज इक्वल्स टू -9। -21/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो सो द आंसर विल 21। The question number 3 is write down the rational number whose numerator is -7 multiplied by 2 and whose denominator is 21 minus 2. Here is the solution of question number 3. The rational number will be equals to -2 multiplied by 2, which is the numerator of that rational number, and 21 minus 2 is the denominator of that rational number. So -7, 7 2s are 14, minus as it is आ जाएगा, 21 minus 2 will be equals to 19. So our required rational number is -14/19. Question number 4 is same as question number 3. So question number 4 is your homework. Now have a look at question number 5. Express -3/7 as a rational number whose numerator is 6, -15, 3 and 9. We will solve the part 1 over here and the remaining 3 parts will be your homework. Now the given condition is -3/7. Here the numerator is -3 and the denominator is 7. Now we have to make the numerator 6, +6. सो हमने जो -3/7 में न्यूमिनेटर 3 को 6 बनाना है, तो हम सबसे पहले ये सर्च करेंगे कि 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 6 आ जाए। तो 3 2s are 6। अब हमने उनके साइन को पॉजिटिव करना है, तो जब हम -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 2s are 6, सो द डिनोमिनेटर विल बिकम +6 एंड 7 2s are 7 multiplied by -2 it will become -14। और ये बात अगेन मैं आपको फिर बता रही हूँ, एग्जाम्पल में भी अभी हमने डिस्कस किया था कि हम जिस भी नंबर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये नहीं करना है कि हमने सिर्फ न्यूमिनेटर को 6 बनाना है, तो जस्ट न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें -2 से और डिनोमिनेटर को ना करें, इट विल बी रॉन्ग। सो द रिमेनिंग 3 पार्ट्स आर -15, 3 एंड 9। दीज ऑल आर द सेम। आपने न्यूमिनेटर 3 को ढूंढना है कि 15 किससे आएगा, 3 किससे आएगा, 9 किससे आएगा। तो जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द साइंस आपने इसको मल्टीप्लाई करके अपने रिक्वायर्ड आंसर्स को फाइंड आउट कर लेना है।
The question number 6 is express minus 2 over minus 5 as a rational number whose denominator is 5, minus 15, 40 and minus 50. Here we will discuss only the first part. The remaining 3 parts will be your homework. Minus 2 और minus 5 is the given fraction. हमने डिनोमिनेटर को 5 बनाना है. गिवन फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 5 है लेकिन साइन का डिफरेंस है. हेयर इज द डिनोमिनेटर इज -5 and the required denominator is +5. So we will multiply -2 over -5 with -1. So minus minus plus, 2 ones are 2, minus again minus minus plus, 5 ones are 5. So our required rational number is 2 over 5. इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं. आपने अब डिनोमिनेटर्स को देखना है कि हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए. ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने से 40 आ जाएगा और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 50 आ जाएगा. और इसके साइन को भी आपने ध्यान में रखना है. ये नहीं है कि आप सिर्फ उनके डिनोमिनेटर्स में ये नंबर ले आएँ और साइन डिफरेंट हो, साइन को भी आपने सेम करना है. आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.